Yeah, now coming back to Visual Studio. Now here we create a one more file. Okay, in the backend we will create a file. So we will create a file with a .env. Okay, just a second. So here we need to enter the URL which we was saved. I mean, which we have saved in a MongoDB, right? So let's enter the uh, Mongo's Mongo URI. Mongo URI. This it should be a capital, okay, guys. So now let's enter the code which you was like saved. Yeah, as you can see here, I have just entered my link, which was we have. I mean, like which was I have saved in the MongoDB Google Form. Okay, right now we want to install some packages. So let's open our file index.js. In that we want to import some packages, and there are some, and they are like import .env. Oh, sorry. Wait a second. For this, we want to type this, yeah, dot env, and just from where we are importing, just mention that. Okay. So we are mentioning from the dot env. Right. So we just want to close this, and now we will go for like config. Like we will do config of it. Yeah, so now here I just have .env, and I just mentioned a config, okay, for it. And in this .env file, so as I mentioned my own password and my own what we call own user ID. So please don't mention my password. So whatever the files you have been created, it will push on my MongoDB's file. Okay. So now here we will see on port, on which port we are running, right? Okay, so we can see that the port is 5011. Okay, so just copying it, and I'm just going in a .env, and after that I'm clicking on enter, and just given my port number, right? So now let's go for a index.html. So we will end. So here we need to add some code. So let we add for getting output. Okay, so and I'm here mentioning that that if the port is the process.env port, it can be run on 5011, or it can either run on 501. Okay, now let's go for the terminal. Okay, so, and in the terminal, we have to just let me close this, and I want to like npm run ref. Let's see where does it's running. Yeah, it's running on the server. Is running on a port 5011. Okay, so it's running on a 5011. So if this port number, wait, just let me show. Yeah, अगर ये वाले के अंदर व्हाट वी कॉल बहुत सारा ट्रैफिक है, सो ये इसमें काम होगा. ओके, ये 5011 फॉर फिलहाल इसके इधर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, सो इट्स रनिंग ऑन द 5011. ओके, now just cross everything, and we will create a new folder. Okay, right? So in a backend we will create a new folder, and we will name it as the name utils करके हम एक नाम करेंगे. Okay, just we just for utils we are creating like it what we call, हमको कुछ like बहुत कुछ काम रहते हैं बीच में while connecting to the backend. So utils are the best things to connect and make for them. Okay, so मैंने यहाँ पे utils करके एक folder बना दिया था. Okay, right? Yeah. So now we will create one more new file in utils, that is db.js, right?
So for a database we are just creating this. So इस अभी इसके अंदर we will write some code, like import को mongoose करेंगे पहले, like mongoose, like हमको database के लिए बहुत ज़रूरत है ना, so we import mongoose from mongoose. Okay, yeah. So now let's go and और पूरा कोड एंटर करेंगे यहाँ पे. ओके, yeah, so here we have written all the code, for why it is like we need. So like हमने पूरा कोड यहाँ पे लिख लिया था, तो हमको क्या क्या कोड यहाँ पे चाहिए तो मैंने इंपोर्ट कर दिया था, एंड इसको मैंने कांस्टेंट कनेक्ट डीबी एंड एसिंक्रोनाइज करके मैंने यहाँ पे ट्राई के अंदर डाला, एंड मैंने लाइक सम मैसेजेस, अगर ये एरर रहा तो कैच एरर रहा तो एरर कनेक्टिंग टू मोंगोस, अगर नहीं रहा तो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस. ओके, सो मैंने पूरा कोड यहाँ पे डाला. अभी मुझे ये रन करने के लिए मुझे इंडेक्स डॉट जेएस के फाइल के अंदर जाके अभी वी हैव टू एंटर द कमांड. ओके, या कमिंग टू द दिस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हम अभी मुझे मोंगोडीबी को कॉल करना है, तो मैं डायरेक्टली ये ऐप डॉट लिसन के अंदर मैं मोंगोडीबी को कॉल करूंगी. लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी गेट. ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, लाइक ऐप क्रैश्ड, वेट फॉर सम फाइल्स चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग. तो ये क्यों आ रहा है मेरा? लेट्स रीड मी द एंटायर प्रोसेस, जस्ट अ सेकेंड. Yeah, so why it is giving me errors after reading the entire this error messages? So we have forgot to import that. हमने पूरा कोड लिख लिया, लेकिन इंडेक्स डॉट जेएस को कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ से ये लोग ये यहाँ से इंपोर्ट कर रहे करके? तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कनेक्ट डीबी फ्रॉम यूटिल्स डीबी डॉट जेएस को, यूटिल्स के अंदर ही ये फाइल है ना, तो वी हैव कॉल्ड दिस. सो मैं आई एम जस्ट टेलिंग, मैं आपको एक बात क्लियर कर रही हूँ. अगर आपने मैंने इंडेक्स डॉट जेएस का नाम लेके मैंने फिक्स सेव किया, तो मैं आई एम जस्ट कॉलिंग द नेम, आई एम जस्ट कॉलिंग वॉट एवर द नेम आई हैव क्रिएटेड फॉर द फाइल, मैं उसी वही कॉल कर रही हूँ. अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ और क्रिएट किया लाइक इंडेक्स डॉट वन डॉट जेएस, तो अगर आप इंडेक्स डॉट जेएस कॉल करोगे तो आपको एरर शो होगा. ठीक है, तो इस चीज़ में कुछ थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है, तो ये देखना यहाँ पे मुझे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5011 एंड मोंगोडीबी कनेक्टेड. ओके, सो मुझे लाइक मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया मेरे जो हमने क्रिएट किया था ना गूगल से. सो व्हाट वी हैव क्रिएटेड पूरा उसमें क्लस्टर वो सब मुझे कनेक्ट होके मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ओके, नाउ वी विल क्रिएट अनदर फाइल. पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो वो फोल्डर के लिए क्या है मैं बताती हूँ अभी क्या क्या क्रिएट करेंगे. ओके, सो इन बैकएंड तो मैं अब यहाँ पे मॉडल्स करके क्रिएट करती हूँ, एंड उसके अंदर फिर से मैं एक न्यू फोल्डर मैंने लाइक न्यू फाइल करूँगी, एंड यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे. सो फॉर वो फाइल हमको लाइक यूजर्स के साथ लाइक यूजर का जो लाइक मॉडल है ना वो लेने के लिए हम यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस एक फाइल क्रिएट की. ओके, अभी इसके अंदर हमें लाइक कुछ कोड डालना होगा. अभी इसके अंदर मुझे क्या-क्या कोड डालना मैं आपको दिखाती हूँ. सो अभी हम पहले इंपोर्ट करेंगे. ओके, इंपोर्ट क्या बोल के लिखा, मोंगोस, राइट, मोंगोस फ्रॉम, हम कहाँ से लेंगे मोंगोस? मोंगोस से लेंगे ना. सो वी जस्ट वांट टू डिक्लेयर इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, राइट. सो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट यूजर स्कीमा मैंने कॉल किया है, एंड यहाँ पे इज इक्वल्स टू बोल के न्यू मोंगोस डाला, राइट. एंड मैंने यहाँ पे फिर से एक स्कीमा ओपन किया, राइट. एंड यहाँ पे मैं ब्रेसेस ओपन करती हूँ, एंटर डालती हूँ, एंड इसके अंदर मुझे अभी यूज़र से क्या क्या लेना है, यूज़र का फुल नेम क्या है मुझे पता चलना चाहिए. तो वी जस्ट वांट टू राइट फुल नेम, जस्ट अ सेकेंड. या यूज़र का फुल नेम क्या है, सो जस्ट वांट टू एंटर, एंड इसके अंदर वो टाइप यूज़र का जो मुझे यूज़र शुड एंटर स्ट्रिंग के अंदर ही टाइप करना है, राइट. सो मुझे स्ट्रिंग करके डालना है. सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग करके डाल दिया, फिर कामा करके, एंड रिक्वायर्ड है. ओके, ये लाइक हमने देखा था ना एचटीएमएल के अंदर कि कैसे लाइक रिक्वायर्ड डालेंगे तो यूज़र कैन नॉट स्किप दैट पार्ट. सो ये यहाँ पे ट्रू डाला मैंने, फिर मैंने यहाँ पे लाइक एंटर हुई, एंड आफ्टर कमिंग टू ये वाला मेरा यूज़र से फुल नेम ये सब मेरा क्लोज हो गया. नाउ लेट्स गोइंग फॉर ईमेल. ईमेल लेना है मुझे यूज़र से.
एंड यू में ईमेल के अंदर मुझे क्या बोलना है, टाइप करके, टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। आई जस्ट डिफाइन स्ट्रिंग। सो फिर से मैं अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड के पास जाऊँगी एंड मैं बोलूँगी कि ट्रू है। सो वी जस्ट वांट टू गिव सम ट्रू, एंटर ट्रू। सो बाद में ये यूनिक रहना चाहिए। ओके, सबका एक एक ईमेल यूनिक ही रहता है ना, रादर देन आपका मेरा सेम तो नहीं होगा ना। सो यू जस्ट हैव, मैंने यहाँ पे ट्रू करने के बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है। अभी मैं यहाँ से ऑब्वियसली यूजर से मैं फ़ोन नंबर, अभी फ़ोन नंबर लूँगी। सो फ़ोन नंबर। सो अभी इसका टाइप डालूँगी एंड यहाँ से स्ट्रिंग एंड बाद में यहाँ से फिर रिक्वायर्ड लेंगे, यूनिक बोलेंगे। ठीक है, यही सब फिर से डालूँगी मैं यहाँ पे। और ये क्या, मैंने यहाँ पे ट्रस्टेड डाल दिया, सॉरी, यहाँ पे ट्रू है। ओके, एंड बाद में फिर मैं क्या लूँगी, यूज़र से आई थिंक यहाँ से कॉमा लगाना है। फिर मुझे पासवर्ड डालना है। ओके, पासवर्ड मैं यूज़र से पूछूँगी एंड ओपन करना है एंड फिर से यहाँ पे टाइप है, वेट अ सेकेंड, ये यूनिक नहीं लेकिन यहाँ पे ये टाइप एंटर करना है। ये स्ट्रिंग का जो टाइप है ना, ये टाइप हमको एंटर करना है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया एंड ये गया एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप भी मैंने मेंशन किया था। ओके, एंड बाद में ये होने के बाद जस्ट क्लोज कर देना एंड यहाँ पे हम रोल पूछेंगे। रोल का मतलब वो पर्सन कौन से रोल में। ओके, इट्स नॉट ए फूड रोल। ओके, एंड फिर से यहाँ से हमने टाइप लेंगे। सो ये रोल का मतलब आप स्टूडेंट हो कि या कोई कंपनी से रिक्रूटर, लाइक हायरिंग मैनेजमेंट हो करके ये यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग करके बोला एंड स्ट्रिंग। फिर हम ओपन करेंगे, लाइक रोल के अंदर हम क्या बोलते, वेट अ सेकेंड, या फिर हमने एन्यूमल करके एंड इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, एडमिन बोलेंगे। एक तो एडमिन रहेगा ना ऑब्वियसली, एंड बाद में हम एक यूज़र लेंगे। ओके, यूज़र, राइट। सो हमने क्लोज कर दिया। बाद में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे जाओ एंड एंटर दिस डिफ़ॉल्ट। ओके, एक जस्ट सेकेंड, सॉरी, एंड यहाँ पे हम एक यूज़र करके बोलेंगे। ओके, यूज़र, एंड फिर बाद में हम यहाँ पे लाइक ये इसके अंदर एडमिन और यूज़र के बदले आप स्टूडेंट एंड रिक्रूटर रखना, ये बहुत अच्छे से दिखाएगा आपको। फिर बाद में हम जाएंगे लाइक प्रोफाइल के अंदर। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोफाइल नेम। सो हियर वी एंटर्ड इट। सो प्रोफाइल के अंदर हमको क्या क्या चाहिए, बायो चाहिए। बायो के अंदर क्या चाहिए, आई मीन ये कौन सा टाइप होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके, मेंशन दैट इट्स अ स्ट्रिंग। फिर बाद में मैं कामा करूँगी इसको। स्ट्रिंग के बाद बायो के अंदर मुझे स्किल्स भी पता चलना चाहिए ना स्टूडेंट के। सो मैं यहाँ पे स्किल्स करके बोलूँगी। सो कोई भी अगर हमारे वेबसाइट में आके उनका स्किल्स भी ऐड करना चाहिए ना, तभी तो जॉब्स विल गेट, राइट। सो यहाँ पे वी विल एंटर द टाइप। सो इट्स नथिंग बट द स्ट्रिंग स्किल्स का भी। सो यहाँ पे हम एक ब्रेसेस ओपन करेंगे। ओके, सो उनका टाइप पूरा पता चलने के लिए। So we have created some type। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे रिज्यूम का स्किल्स के अंदर हमने टाइप पूछा, तभी स्किल्स के बाद हमें मुझे लाइक रिज्यूमे भी पता चलना चाहिए ना, लाइक स्टूडेंट का रिज्यूमे कैसा होगा करके। तो मैं लेट अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ। ओके, बाद में अभी मुझे क्या क्या चाहिए, रिज्यूमे चाहिए स्टूडेंट का। सो अभी स्टूडेंट कहाँ से पढ़ा है, क्या है उसके पास स्किल्स करके मुझे पता चलना चाहिए। तो मुझे मैं रिज्यूम का स्ट्रिंग डालूँगी, रिज्यूम का टाइप स्ट्रिंग डालूँगी एंड कमिंग टू लेट्स गिव एंटर एंड यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे एंड बाद में एंड रिज्यूमे। सो ओरिजिनल नेम भी चाहिए मुझे। ओके, ओरिजिनल नेम एंड यहाँ पे क्लोज कर देना। ओके, राइट। यहाँ पे हम टाइप पूछेंगे, फिर से टाइप्स क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। सो ओके, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, एंटर मारने के बाद कॉमा कर देना। अभी कंपनी, अभी ऑब्वियसली ये सब होने के बाद कंपनी तो हमें एंटर करना है ना, तो कंपनी एंटर करूँगी। ओके, सो अभी कंपनी का लाइक टाइप बोलेंगे।
टाइप कुछ भी लेके लेट्स गिव मोंगोस करके एक देंगे नाम। ओके, इट्स जस्ट सैम्पल। ओके, मोंगो स्कीमा एंड बाद में टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट आईडी, राइट, एंड कामा कर देना। एंड एक कंपनी का एक रेफरेंस देते हैं ना, तो बाद में लाइक कंपनी का। ओके, बाद में हम लाइक यहाँ पे क्लोज कर देंगे। वेट अ सेकेंड, या हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे ये इतना सब कर दिया, तो अभी मुझे लाइक प्रोफाइल पिक तो चाहिए है ना, लाइक कौन सा यूज़र का प्रोफाइल पिक ऑब्वियसली रहता है ना, जैसे हम इंस्टा में लेते हैं, फेसबुक में लेते हैं, सेम वैसे मैं हमारे वेबसाइट को भी एक प्रोफाइल पिक मुझे चाहिए करके हम क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रोफाइल पिक के बाद यहाँ पे देखना टाइप करके, एंड आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स करके टाइप कर सकते हो। ओके, स्ट्रिंग करके टाइप करना एंड बाद में यहाँ पे एंटर कर देना। वेट अ सेकेंड। ओके, सो बाद में हम डिफ़ॉल्ट का कलर हम ब्लैंक करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कुछ लाइक के पास तब तक मे बी नहीं रहेगा, तो ब्लैंक भी डाल देंगे, लाइक डिफ़ॉल्ट के लिए एक ब्लैंक डाल देंगे। लेकिन बट इट्स अ मैंडेटरी दैट एवरीवन शुड कीप अ प्रोफाइल पिक करके। मैं अभी यहाँ पे एंड कर देंगे, एंड बाद में हम यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प डालेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या डाला, मतलब एक टाइम स्टैम्प डाला है यहाँ पे। ओके, सो ये ट्रू होना चाहिए करके मैंने यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प डाला था, एंड बाद में लेट्स जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पे लाइक एंटर करने की ज़रूरत होगी। ओके, एंटर कर देने के बाद हमें ये जो दिख रहा है ना, ये लेट्स गिव सेपरेट, जस्ट अ सेकेंड, सेपरेट में आ जाएगा। एंड बाद में यहाँ पे हम एक्सपोर्ट लिख देंगे। एक मिनट, एक्सपोर्ट कांस्टेंट यूज़र का एंड मोंगोस मॉडल से लेंगे करके हम देंगे। ओके, ये पूरा हमने यूजर का स्कीम है ना, पूरा हमारा प्रॉपर तरीके से हमको पूरा क्लियर आ गया है। एंड आप पूरा अच्छे से कोड लिखना, ठीक है। सो एक बार फिर से देखेंगे हमने क्या इंपोर्ट किया था, एंड क्या हमने यूज़र से क्या लिए थे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस करके डाला, एंड मैंने यहाँ पे यूज़र स्कीमा करके मैंने यहाँ पे न्यू मोंगोस स्कीमा करके डाला। यहाँ पे मैंने फुल नेम पूछा, एंड ये टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड चाहिए। ईमेल भी पूछा, टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, एंड यहाँ पे देखना यूनिक चाहिए, एंड फ़ोन नंबर भी टाइप पूछा मैंने, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, और ये भी यूनिक चाहिए। पासवर्ड जो है ना, ये स्ट्रिंग चाहिए, एंड पासवर्ड किसी का सेम भी रहता है, तो आई डिड नॉट मेंशन ए यूनिक। ओके, सो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड तो मेंशन किया। यहाँ पे पैन कार्ड एंटर करना, एंड आधार कार्ड भी एंटर किया था मैंने अभी। यहाँ पे रोल मैंने अभी देखेंगे, यहाँ पे ये एक टाइप है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट और रोल स्टूडेंट के लिए एंड रिक्रूटर के लिए रखा था, डिफॉल्ट स्टूडेंट है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे ट्रू मेंशन किया। प्रोफाइल पिक के अंदर अभी क्या चाहिए, मुझे बायो चाहिए, स्किल्स चाहिए, एंड रिज्यूमे ओरिजिनल नेम। सो बायो के अंदर स्ट्रिंग्स डालेंगे, स्किल के अंदर भी हमने टाइप स्ट्रिंग मेंशन किया। यहाँ पे देखना रेज्यूमे के अंदर हमने स्ट्रिंग्स टाइप मेंशन किया था, एंड यहाँ पे रेज्यूमे ओरिजिनल नेम के भी अंदर हमने क्या बोलते हैं टाइप स्ट्रिंग्स डाला, कंपनी का नाम डाला था, और यहाँ पे कंपनी का टाइप हमने जस्ट नॉर्मल mongoose डॉट स्कीमा टाइप लिए थे। एंड बाद में यहाँ पे प्रोफाइल पिक देखना आप, एंड अब देखना आप यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हो, यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग आ गया, एंड डिफ़ॉल्ट आ गया, एंड टाइम स्टैम्प हमने यहाँ पे ट्रू लिया है। एंड बाद में आपने देख सकते हो कांस्टेंट, आई मीन एक्सपोर्ट कांस्टेंट यूज़र करके हमने लिया था, mongoose डॉट मॉडल करके यहाँ पे मैंने यूजर्स एंड यूजर स्कीमा करके लिया था। ये कोड पूरा आप टाइप करना आपके लैपटॉप में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी एरर नहीं है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5011 एंड MongoDB इज कनेक्टेड।